آٹے کے بحران کی بات کریں تو آٹے کے بحران کے باعث عام آدمی ہونے لگا ہلکان۔ بڑھتی مہنگائی دہاڑی دار طبقے سے روٹی کا حق بھی چھیننے لگی۔ ملتان میں سستے آٹے کے حصول کے لیے مرد و خواتین کی لمبی قطاریں۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ جی، ملتان شہر میں آٹے کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وہیں پر جو سستے آٹے کے سٹالز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ شہری لمبی لائنوں میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ مرد اور خواتین کے لیے یہاں پر الگ الگ لائنیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ ایک طرف بزرگ لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر آٹا جو ہے، آٹا تو سستا ہے لیکن یہاں پر شہریوں کے کچھ مسائل ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کو دے دے کے 4-4 5-5 گٹو باقی لینا والے کھڑے تھے چھوڑے کھڑے جڑا اڈو پرو بھائی دیاں دا جڑا ملازم والے آندے بنا کو دیندے کھڑے اسا کھڑے ہیں تے جی میں کھڑے ہیں کوئی گال ہی کہ نہیں بھائی ایک گٹو آدھے وہ ایک کی نہیں ملتا ہوٹل والے کو دیندے باقی جو دکاندار ہیں وہ خود 700 کا 750 کا بیچ رہے ہیں دکاندار، اور یہ جو ہیں ہوٹلوں والے بینک والے جو ان کے سفارشی بندے آ رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہم ادھر لائن میں کھڑے ہیں، ان کے جو سفارشی ہیں ان کو اشارہ کرتے ہیں اندر آ جاتے ہیں۔ کیوں اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہیں؟ ہوٹل والوں کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، انہیں دیتے ہیں، ہم ادھر کھڑے رہتے ہیں، ہم 8:30 بجے کے کھڑے ہوئے ہیں ادھر، وہ ہوٹل والے آتے ہیں 2-2 3-3 4-4 اٹھا کے دیتے جاتے ہیں انہیں، 700 750 800 کا دے رہے ہیں۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ سب کو جو ہے نا تحفظ دیں تھوڑا مہربانی کر کے، اور جس طرح یہ لائن لگنی پڑتی ہے یہ نہ لگیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کو 2 سے 3 گھنٹے لائن میں یہاں پر کھڑا رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنی مرضی کے مطابق آٹا یہاں سے نہیں مل سکتا۔ سستے آٹے کا جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ اس مرکز پر 648 روپے کا دیا جا رہا ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ ہے جو کہ شہری افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہاں پر ان کو گھنٹوں انتظار نہیں کر سکتے۔ سہیرا طارق ہمیں بتا رہی تھی، بہت شکریہ۔ آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور سینئر نائب صدر تحریک انصاف شیخ طاہر کا کہنا ہے غلہ منڈی میں آٹا سرکاری نرخ پر دستیاب ہے۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے، جی بتائیے گا۔ اگر آٹا کی وہ ہوا شارٹیج ہوئی تو اس کا ذمہ دار دکاندار ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ہوگا، لائسنس بھی ہوگا، اور یہاں سے وافر آٹا مل رہا ہے۔ آج بالکل پنجاب کے اندر آٹے کا جو بحران ہے وہ اس وقت سر اٹھا رہا ہے، خصوصاً ملتان کی بات کی جائے تو شہری جو ہے وہ سرکاری آٹے کے لیے لمبی لائنوں میں لگے ہوئے اور آٹا جو حاصل کریں۔ دوسری جانب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کا دعویٰ ہے کہ غلہ منڈی کے اندر آٹا اس وقت جو ہے وہ دستیاب ہے اور سرکاری نرخ پر جو ہے وہ بآسانی دستیاب۔ بات بھی کریں گے شیخ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ آٹے کا بحران ہے، غلہ منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ جی جنید، غلہ منڈی میں الحمدللہ آٹا دستیاب ہے، عوام کو آٹا مل رہا ہے تمام تر سہولیات کے ساتھ، اور ہماری گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ اسٹال لگوائے ہوئے ہیں اور پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں آٹے کے، آٹا عوام کو کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہے۔ اچھا، تو شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور پر غلہ منڈی کے تاجروں کو کوئی ہدایت بھی جاری کی گئی، کچھ شکایات آئی ہیں کہ آٹا ان کو لوگوں کو شہریوں کو نہیں مل رہا؟ ہاں، شکایت آئی تھی پہلے جب حمزہ کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم شکایت تھی۔ اب تو الحمدللہ جب سے چودھری پرویز الہی صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی ہے پنجاب کی، جب سے کوئی شکایت نہیں ہے اور آٹا عوام کو وافر مقدار میں مل رہا ہے۔ قطاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اگر شکایات نہیں ہے تو پھر لمبی قطاریں کیوں ہیں؟ یہ سرکاری ریٹ پر جب یہ آٹا آتا ہے صبح صبح تو اس ٹائم لائنز ہوتی ہے، تو کیونکہ آپ کے سامنے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے یہ رجیم چینج آیا ہے، تو پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے اور غربت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے عوام زیادہ آٹے کی لائن میں لگ کر آٹا لے رہی ہے۔ جی بالکل، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی کے اندر آٹا دستیاب ہے، سرکاری نرخ پر آٹا جو ہے وہ دستیاب ہے۔ شکایات آئیں اور ان کو انہوں نے کنٹرول کے ساتھ ساتھ آٹے شارٹیج کی وجہ ان کی جانب سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس وقت جو ہے وہ آٹے سے محروم ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ جنید انور اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کوہ سلیمان میں سستے آٹے کے سیل پوائنٹس قائم۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ اسد چانیہ کی روہی سے گفتگو، کہتے ہیں کوہ سلیمان میں 4 سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے آشش پاک سے۔ غازی خان میں تحصیل کوہ سلیمان میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور سیلاب کے حوالے سے جہاں اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں آٹے کی سپلائی کے حوالے سے بھی
बाकायदा तौर के ऊपर जो मैकेनिज़्म है वो तैयार किया गया है। कोहे सुलेमान के लोगों को सस्ते आटे की फराहमी का जो अमल है वो भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस असद चांडिया साहब। इनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आटे की सप्लाई के हवाले से, किस तरह से मैकेनिज़्म तैयार किया गया है और जो स्मगल कर रहे हैं आटा उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहले तो शॉप्स पे आटा जाता था, वो ख़त्म करके अब हमने ट्रकिंग पॉइंट हैं वो नॉमिनेट किए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट में 28 हैं और हमारे जो कोहे सुलेमान के हैं वो 4 हैं। उसमें एक घर फोर्ट मनरू में है, इसके अलावा हंगलून में, भारती में और फाजला में एक एक बनाया गया है। जो मुख्तलिफ अय्याम में वहाँ पे जो आटा है वो हमारा बीएमपी और रेवेन्यू वाला मिल के वहाँ पे वो चलवाते हैं ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं वो ले सकें। इसके अलावा जो स्मगलिंग है उस पे हमने पिछले 15 दिनों में 15 एफआईआरें दी हैं और उसमें काफ़ी सारा आटा और गंदम जो है वो कन्फिस्केट की गई है। लास्ट हमने कल भी साकर में और तौसा में 2 एफआईआर रजिस्टर कराई हैं और जो आटा है वो उसका एक्शन का फर्दर जो प्रोसेस है वो लिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे जारी रहेगी। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में हमारा मुतलका थाने से बंदा रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी किस्म की शिकायत के हवाले से मुतलका बीएमपी थाने से रुजू किया जा सकता है। कोहे सुलेमान के लोगों को भी सस्ते आटे की जो फराहमी का अमल है वो जारी है और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर बीएमपी पुलिस की जानिब से भी आटा स्मगल करने वालों के खिलाफ, गंदम स्मगल करने वालों सख्त कार्रवाइयाँ जो है वो। जी आशीष पाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें शहरियों की मुश्किलात के हवाले से, मुल्तान के शहरियों को साफ पानी में मुश्किलात का सामना। शहर में 80 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर में साफ पानी के हसूल में लोगों को मुश्किलात का अक्सर सामना रहता है। लोग जो हैं वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं और तमाम जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़िले इंतज़ामिया के अंडर आते हैं उस हवाले से कितने प्लांट्स इंतज़ामिया की तरफ से चल रहे हैं, कितने फ़ाल पड़े हैं और गैर फ़ाल हैं और आवाम तक साफ़ पानी की जो तमाम सहूलियात है वो पहुँचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त क्या क्या इक़दाम कर रही है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से हमारे साथ वासा के डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। मुझसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे वासा की तरफ से साफ़ पानी के लिए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं कितने हैं और किस तरह वाटर सप्लाई पहुँचा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मसाइल का सामना रहता है अक्सर। जी, वासा ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए हुए हैं, जहाँ पर जो ज़्यादातर हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो हमारे ट्यूबवेल्स के साथ कनेक्टेड हैं। वहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद है, उसकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, प्रॉपर उसके फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं। वासा के ज़रिए इंतज़ाम जो 65 प्लांट हैं वो तमाम के तमाम फंक्शंस हैं और वासा उनको प्रॉपरली मेंटेन भी कर रहा है। और सर जो गैर फाल प्लांट्स पड़े हैं वो वासा के अंडर आते हैं या निजी इदारों के हैं, उन हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो टाइम टू टाइम डिफरेंट एजेंसीज़ ने प्लांट और भी लगाए हैं शहर में, लेकिन वो वासा के पास नहीं है, वासा उनका कस्टोडियन नहीं है तो वासा उनको मेंटेन नहीं कर रहा। वासा ने खुद 65 प्लांट शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में नस्ब किए हैं और वासा उन्हीं को मेंटेन कर रहा है और वो प्रॉपर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, वासा की तरफ से लगाए गए जो 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनका कहना है कि वो फाल हैं और उनके फिल्टर्स भी चेंज किए जा रहे हैं। शहरियों को उन प्लांट से सहूलियात देने के लिए मुकम्मल इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो गैर फाल प्लांट्स पड़े हैं वो बाकी निजी इदारों के हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद पड़े हैं, लेकिन जो सरकारी चल रहे हैं उनकी देखभाल की जा। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। 2010 के सैलाब के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी खराब होने से पूरा शहर मुतासिर। आमिर डोगर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पीने के साफ पानी का मसला जो है वो कई सालों से चला आ रहा है। मुजफ्फरगढ़ शहर में 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो बंद पड़े हैं। 2010 के सैलाब के बाद से मुजफ्फरगढ़ के पानी में आर्सेनिक की मिकदार जो है वो 50% से भी ज़ायद जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और शहरी जो है वो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों से ही इस हवाले से जानते हैं, खैराती इदारे हों या दीगर ऑर्गेनाइजेशन हों, उनकी जानिब से भी मैं आपके पीछे देख रहा हूँ कि ये वाटर प्लांट और टॉयलेट बनाए गए हैं, मगर अरसा दराज से काफ़ी जो है वो बंद पड़े हैं और 2010 के बाद से मुजफ्फरगढ़ का पानी ख़राब है कि इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया कभी? नहीं, देखें, आवाम को साफ पीने के साफ पानी की फरहमी में इंतज़ामिया को कोई कमीशन मिल सकता है, कोई किकबैक्स मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। गुजारिश ये है मुजफ्फरगढ़ शहर का आप
किसी भी वाटर प्लांट का कीमियाई तजिया करवा लें, उसमें TDS और आर्सेनिक की मिकदार 80% है। मैंने खुद इनको चेक करवाया, 8 के 8 प्लांट बीमार हैं और ये बीमार वाटर प्लांट्स जो हैं ये शहरियों में बीमारियां फैला रहे हैं। अगर शहरी अपने घर के नलके का पानी इस्तेमाल करें तो वो इतना ज़हर-आलूद नहीं है जितने ये वाटर प्लांट का पानी ज़हर-आलूद है। मुजफ्फरगढ़ में 2012 में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए 42 करोड़ की लागत से एक स्कीम शुरू हुई थी, मुजफ्फरगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम। उसकी टंकियाँ तैयार हैं, लेकिन आज तक 42 करोड़ की लागत लगने के बावजूद, तमाम इंतजाम होने के बावजूद एक बूंद पानी का शहरियों को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। इनका ये कहना है कि आज शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चालू शहरी परेशानी का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया अमित डोगर। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं कि मैपको कंप्यूटर ब्रांच की नाअहली सामने आ गई। माह दिसंबर के बिल नवंबर से ज्यादा भेज दिए। मॉडल टाउन डिवीजन के सैकड़ों सार्फिन को माह दिसंबर में बकाया जात के साथ बिल भेज दिया गया। सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला। आपको आगाह करें, खबर है मैपको कंप्यूटर ब्रांच की नाअहली जो है वो सामने आ चुकी है। माह दिसंबर के बिल नवंबर से ज्यादा भेज दिए गए। मॉडल टाउन डिवीजन के सैकड़ों सार्फिन को माह दिसंबर में बकाया जात के साथ बिल भेज दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से फैक्ट्री मालकान को चालान करना शुरू। दिसंबर के माह में 80 फैक्ट्रीज को चालान किया गया। मज़ीद तफसीलात देंगे अलिशबा। जी बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कम सैलरीज देने वालों फैक्ट्रीज और दुकानों के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में दिसंबर में 80 चालान किए गए हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और दुकानों को। मजीद मेरे साथ डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मौजूद है राना जमशेद फारूक, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। दिसंबर के अंदर लेबर कानून पर अमल दरामद ना करने की पादाश में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के 80 चालान किए गए हैं, जो कि अदालत के अंदर जमा करा दिए गए और अदालत उनको अपने रूटीन के में उनको बुला के उनको समन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी और उसके नतीजे में इन पे जो कोर्ट मुनासिब समझेगी वो फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। फैक्ट्रीज के अलावा शॉप्स में भी हमने बहुत सारे चालान किए हैं और तकरीबन 316 चालान इस महीने में हमने किए हैं और इस साल में इनके शॉप्स के अगेंस्ट 22,48,000 जुर्माना इम्पोज किया गया है। ऐसी शॉप्स जो लेबर कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करती। लेबर कानून पे अमल दरामद ना करने वाले इदारों के खिलाफ जो है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी तरह जैसे कि इन्होंने बताया, चाइल्ड लेबर के लिए भी काम किया गया है। साल भर में जितने भी जुर्माने हुए हैं शॉप्स को तकरीबन 22 लाख से जायद हैं और दिसंबर में 80 से जायद फैक्ट्रीज को जुर्माना किया गया है। इसी तरह 300 से जायद जुर्माने हैं जो अमल दरामद। जी अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब इफ्तिखार अहमद खान ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। नवाब इफ्तिखार अहमद खान ने कश्मीर कौंसिल में सालगिरह का केक काटा। सालगिरह पर जियालों, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। नवाब इफ्तिखार खान का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा से आइन की बालादस्ती के लिए सीसा प्लाई दीवार साबित हुई। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखे हुए है। नवाब इफ्तिखार शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। सदारत और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 1-to-1 मुकाबला होगा। सदारत की नशिस्त के सलीमुल्लाह खान एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बाबर खान न्याजी जस्टिस ग्रुप के उम्मीदवार हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मलिक अतरयार आमान और सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान जारूखैल साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, किसकी फतह देखने जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वकीलों के इलेक्शन में थोड़ा सा बाकी इलेक्शन से हालात मुख्तलिफ होते हैं। वकला के आपस में वैसी रिफ्ट्स नहीं होती जैसी कि पहले बार हमारे कचहरी के एरिया से बाहर जो इलेक्शंस होते, जनरल इलेक्शंस की जो बात है, जैसा वहाँ पे चलता है यहाँ पे वैसी रिफ्ट्स नहीं होती, क्योंकि हमने 24 घंटे साथ होना होता है, हर वक्त एक दूसरे के साथ कोर्ट्स में पेश होना होता है। तो हमारे आपस में वो सख्ती या मुकाबलाबाजी या उस तरह का समा नहीं होता। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं सलीमुल्लाह खान साहब को
और होप भी यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह क्लियर मार्जिन से और वाज़ेह बर्तरी से और अपने कैंडिडेट को भी अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत ज़्यादा आगे देख रहे हैं। जी, सलीमुल्लाह खान को फतह याब होते देख रहे हैं, सर क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजाज साहब, जैसा कि मेरे अजीज़ मलिक अत्तर जारावान ने आपको वजाहत की है, हर साल डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन होते हैं। उन इलेक्शनों में मोस्टली 1 to 1 है, 2 ग्रुप हैं, शेख हनीफ ग्रुप है, एक मेरा ग्रुप है। मेरे साथ अलाइयों में शामिल हैं मलिक अत्तर जार साहब और यंग वाले हैं, G8 वाले हैं, मलिक सलीम हैं डेमोक्रेटिक ग्रुप के। हम समझते हैं कि इस साल हम सेफ जोन में हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज। एजुकेशन बोर्ड बहावलपुर के इंतखाबात का मैदान सज गया। बोर्ड के 558 मुलाजमीन अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में 4 ग्रुप्स मद्दे मुकाबिल हैं। ताहिर जोया इंतखाबात के बारे में अपडेट करेंगे। एजुकेशन बोर्ड बहावलपुर के इंतखाबात का मेला सजा हुआ है। वोटिंग का सिलसिला जारी है। बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो सिलसिला है वोटिंग का जारी है। 350 वोट हैं, कुछ जो कास्ट हो गए हैं और जो बाकी सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और जो वोटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, सिलसिला बड़े पुरअमन तरीके से जारी है और क्या पेश गोई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह के बहावलपुर बोर्ड में हमेशा से 88 से अलखिदमत ग्रुप वजूद में आया। उस वक्त से हम इलेक्शन करा रहे हैं मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए और अलखिदमत ग्रुप ने हमेशा काम को तरजीह दी और मुलाजमीन के हमेशा मसाइल पर तवज्जो रखी। इस सिलसिले में जितने भी काम हुए हैं, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो इसी की एक कड़ी है और तमाम ग्रुप मुतमईन है इलेक्शन के कंडक्ट कराने से और माहौल से हर लिहाज से। इंतजामिया, कमिश्नर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, सब ने भरपूर ताउन किया है और पुरअमन तरीके से यहाँ इलेक्शन मुनक्किद किया जा रहा है। कितना जरूरी है जी इलेक्शन? जी ये इंशाल्लाह ज़रूरी तो है जी। 2 साल के बाद होते हैं हमारे इलेक्शन। पूरी फेडरेशन लेवल पे होते हैं, पंजाब लेवल पे। इस वक्त लाहौर में भी हो गए हैं, गुजरावाला में, बहावलपुर में हो रहे हैं। आज 14 को DG खां में, तो अलखिदमत ग्रुप से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सर हमें उम्मीद है और हमने जो है पिछली दफ़ा भी हमने विन किया हुआ था। ताहिर जोया बहुत शुक्रिया आपका। जामपुर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई वज़ीर तवानाई और खुराक के हुक्म पर दुकानों पर सील पॉइंट खत्म करके 5 पॉइंट काम कर दिए गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, अगर जामपुर में आटे के हसूल के हवाले से बात करें तो आटे के हसूल के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आटे का जो हसूल है इस वक्त वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सब्जी मंडी नहर पुल पर 426 बैग, शेरू अड्डा पर 826 बैग, दाजल चौक पर 623 और इसी तरह जो मज़ाफाती इलाके हैं दाजल वहाँ पर 400 और मोहम्मदपुर दीवान में 526, हाजीपुर में 300 और कोटला मुगलान में 300 बैग। इस तरह से जो टोटल जो तादाद बनती है वो 4500 बैग की बनती है। लेकिन इस वक्त जो है खवातीन और मर्दों की एक बड़ी तादाद आटे के हसूल के लिए यहाँ पर खड़ी है। सब्सिडी में आटा तो पहुँच चुका है लेकिन अभी तकसीम का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि इस वक्त लोगों की जो है कतारें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरह जो है खवातीन की एक बड़ी तादाद भी आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि वो मजदूर तबका है और आटे के हसूल के लिए सुबह से वो इंतजार में खड़े हैं। लेकिन महकमा फूड की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम अपनी निगरानी में आटा चलाएंगे, लेकिन एक घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक लोग जो है काफी मुश्किल में। मजीद हम बात करते हैं, क्या कहेंगे भाई? सर हम सब मजदूर तबके के लोग हैं सर, अपना काम छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, बाहर हमारे ठेले लगे हुए हैं, वहाँ से भी हमारी दिहाड़ी का ज़िया होता है और यहाँ हम काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे? हुजूर क्या कहेंगे आटे के लिए? क्या कहेंगे? परेशानी क्या परेशानी है भाई? परेशानी आटे के लिए है सर जी। बात है कि मकसद है असर सुबह से अपनी दिहाड़ी तोड़ के इतने आए हैं, पहले आटा लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे कल परसों के बैठे हुए हैं, आटा हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल, आटे के हसूल के लिए लोग जो है काफी मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया को चाहिए। जावेद इकबाल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद में आटा गरीब आदमी की दस्तरस से दूर होने लगा। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1200 से 1300 में फरोख्त होने लगा। इसी हवाले से अपडेट करते हैं जावेद अनवर।
जी बिल्कुल, मुल्क के बाकी शहरों की तरह सादिकाबाद में भी जो है वो आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से सादिकाबाद में जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो स्टॉल लगा दिए गए हैं, मगर स्टॉल में जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगा दी गई हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आटे की किल्लत के हवाले से? आटे के लिए ये कहना चाहते हैं कि भी पैसे उठा के फिरने 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे को आटा नहीं मिलता। हम काम छोड़ के खड़े रहते हैं, आटा मजबूरी से टाइम भी ज़ाया होता है, आटा भी कभी कभी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम गांव से आए, पिंड से आया, चक 149। जी बिल्कुल, दूर दराज से हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और कितनी देर से? मैं सर भोंग के करीब चौक सवेतरा शहर से आया हूँ, मगर आटा मिल तो रहा है लेकिन थोड़ा दिक्कत है, मुश्किलात हैं, लाइन में लगना पड़ता है, तो लंबी लाइनें भी हो जाती हैं। अब हम गरीब मजदूर आदमी, हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है कि हम घर बैठ कर खाएं, मजदूर शख्स हैं। अब मैं खुद अपनी दिहाड़ी तोड़ कर इधर आया हूँ, लेकिन ये सारा दिन मेरा इसी वक्त में इसी टाइम में ज़ाया हो जाता है। मेहरबानी, हमारी दरख्वास्त है, हुकूमत से अपील है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें और आटा जल्दी फराहम करें। ये नहीं कह रहे नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन मुश्किलात आ रही हैं। गरीब आदमी को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 3-3 घंटे लाइन में एक आदमी अगर बीमार है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या होगा? वो क्या करता है? वो बेहोश हो जाते हैं आदमी, बाद औक़ात धक्के भी आते हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन आप मेहरबानी करें, हमारे साथ बहुत कोशिश करें कि भैया। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आटा। जावेद अनवर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। BWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 47वां इजलास BOD बुशरा अंजुम, इंजीनियर इफ्तिखार हैदर, इंजीनियर अकबर खान और दीगर की शिरकत। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैनिटरी स्टाफ को BWMC के तहत मॉनिटर करने का फैसला। तहसील हासिलपुर को WMC के सपुर्द करने का भी फैसला कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर कोर्ट अद्दू मोहम्मद हुसैन राना की सोशल वेलफेयर तकरीब में शिरकत। सोशल वेलफेयर और मैरिज स्टॉपिस में सोसाइटी की तरफ से रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। गरीब और सैलाब मुतासरीन में डेप्यूटी कमिश्नर ने रज़ाइयाँ तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू मोहम्मद हुसैन राना की सोशल वेलफेयर तकरीब में शिरकत। सोशल वेलफेयर और मैरिज स्टॉप्स सोसाइटी की तरफ से रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। गरीब और सैलाब मुतासरीन में डिप्टी कमिश्नर ने रज़ाइयाँ तकसीम की हैं।